हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CAFM जून 24 का जो पेपर आया था उसके जो कुछ 3-4 कुछ बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, टफ या लेंदी क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। आधे से ज़्यादा पेपर नॉर्मल इजी आता है, 5-5 मार्क के काफ़ी क्वेश्चन इजी सिंपल आते हैं। वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सप्लाई वैसे भी काफ़ी कम है, तो पास पेपर्स खुद से आपको सॉल्व करने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस बट ऐसे हैं जिसमें जो आपको नहीं जम रहे होंगे, जिसमें आपको एक टीचर के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। इसी तरह से मैंने कुछ 3-4 जो बड़े क्वेश्चन आए थे दिसंबर 23 पेपर के, वो भी मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जून 24 का पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, कैलकुलेटर लेके साथ में बैठना। ठीक है, बुक, रजिस्टर और कैलकुलेटर और जो जून का पेपर है वो आपको लेके बैठना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं इसमें लेने वाला हूं। लेंदी क्वेश्चन आया था, काफ़ी लेंदी था, मतलब क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, आंसर उतना लेंदी नहीं है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 15 मार्क का पहला क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। Prabhuji is first generation entrepreneur engaged in a bakery business. Prabhuji is the proprietor of B and Sons, a Mumbai-based concern manufacturing bakery products, confectionaries and sweets. Products are manufactured and sold in wholesale to retailers under a brand name Bread and More. Products were essentially sold to retailers who would then sell to the final consumer. पूरा बैकग्राउंड दिया है, कुछ खास काम का नहीं लग रहा है। Since the year 2020, the next generation of Prabhuji's family started participating in the business. The new generation is technologically aware and suggested direct sales to the customers through omni-channel, that is online sales. Bakery brand was also known locally. However, due to sales online and due to good quality of the product, the bakery product started gaining traction nationally. Demand for the products increased. As a result, there was a need to increase manufacturing capacity. New members in the family business suggested borrowing or setting up a special purpose vehicle for new manufacturing units. Private equity players can then invest in SPV. ठीक है, separate business बनाओ और उसमें आप funding ले लो. Prabhuji is a conservative businessman while not being average to expansion. Prabhuji suggests minimizing the need for external finance while relying more on internal accruals. ठीक है, मतलब पूरा history दिया है और उनके opportunities दिए हुए हैं और सोच क्या है प्रभु जी की और उनके फैमिली मेंबर्स की, वो सब दी हुई है। तो कुछ एक्चुअल नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पूरा एक्चुअल प्रॉपर फाइनेंशियल नंबर्स दिए हुए हैं। डेट्स पे आपको यहां ध्यान देना है। अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च 2023 मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब ये पूरा जो डेटा है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का है। ठीक है, ये आपको डेट से समझ में आ जाता है, मतलब ये पास्ट डेटा, एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा आपको सारा नंबर दिया हुआ है। इसी तरह डेटर्स भी, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स आपको दिए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डेट, इक्विटी, पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। Jimsha is a financial expert and consultant and is a school friend of Prabhuji. One of the key cautions was on improvement in the cash flows. Jimsha made a suggestion regarding the study of working capital management. Number of firms ignored funds blocked in working capital. Prabhuji was also concerned about the return on funds invested in the business as capital. Jimsha advised Prabhuji to use DuPont analysis to check whether the funds are used efficiently. Prabhuji mentions the increase in demand and possible needs to increase capacity. There are various options available to meet the demand. पहला है outsource कर दो। ठीक है, outsource the production to third party. Expand the production capacity by incurring the capital expenditure. ठीक है, मतलब एक है कि खुद इन्वेस्टमेंट मत करो, किसी और से आउटसोर्स करके ले लो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि आप खुद पूरा बिल्डअप करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो और खुद ही करो। कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स पे फर्क पड़ता है। देयर आर कंसर्न्स अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इफ प्रोडक्शन इज आउटसोर्स। ठीक है, ये भी दिया ही हुआ है कि बाहर देंगे तो क्वालिटी का एक कंसर्न है ही कि वो हमारे जैसा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। Cost of additional capacity is likely to be substantial. Capex of 5 lakh rupees financed 80% by debt, raised at 10%. ठीक है, कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है और 5 लाख का 80% आपने डेट लिया है और बचा हुआ जो है वो आपने खुद से डाला है, इक्विटी डाला है। 80-20 डेट इक्विटी रेशियो है 5 लाख का।
तो ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है 5 लाख का। अब आने वाले साल का प्रोजेक्शन दिया है फॉर 23-24, ठीक है, एस्टिमेटेड है, प्रोजेक्शंस यानी एस्टिमेट्स है ये, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करें, कैपेक्स करें, तो हमारा सारे नंबर्स क्या होंगे, प्रोजेक्टेड फोरकास्टेड नंबर्स दिए हुए। रेवेन्यूज अभी 25 लाख है, ऊपर टेबल में दिया हुआ, ये 30% से बढ़ेंगी, ठीक है, 30% का आपको फायदा होगा। टोटल एसेट्स 26 लाख रुपए हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,75,000 हो जाएंगे, डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस 50 प्लस जो नया डेट होगा उस पर 10% के हिसाब से आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना होगा। टोटल इक्विटी प्रॉफिट जोड़ के या जो भी एक्चुअल होगी, और डेट जो आप लोगे मतलब सब निकालना है आपको, ठीक है। टैक्स रेट 30% है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग में मैंने आपको दिसंबर के पेपर में भी ये बताया था, आई थिंक दिसंबर पेपर में वर्किंग कैपिटल के साथ एस्टिमेटेड पीएनएल बैलेंस शीट पूछा था, इस बार रेशो के साथ पूछा है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबसे मेन है फोरकास्टिंग में, ये सबसे मेन होता है। और दिया हुआ है देखो, जीपी रेशो रिमेन सेम एज द प्रीवियस ईयर, ये नहीं भी दिया होता है तो भी हमको ये अज्यूम करना पड़ता है, नहीं तो आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो जीपी रेशो सेम होता है, सेल्स कितनी बढ़ रही है वो आपको दिया हुआ है, जीपी रेशो कांस्टेंट है, तो नए सेल पे डायरेक्टली वो जीपी रेशो आप ले लोगे तो नया जीपी आपको मिल जाता है, और फिर जीपी से एनपी बीच में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आपको दिए हुए हैं। तो जब भी आप फोरकास्टेड पीएनएल बनाते हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जीपी का, ये अजम्पशन काफी क्रूशियल अजम्पशन होता है। छोटी छोटी चीजें आप नोट करते जाना, अगर आपको लगता है कि यार सर कुछ बढ़िया बता रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि रिवीजन के लेवल पे एग्जाम के पहले आप इन सारी चीजों को रिवाइज करके जाएं, ठीक है। तो ये सबसे गेम चेंजर है फोरकास्टिंग के लिए। अब इतना इतिहास इन्होंने अपने पूरे बिजनेस का दिया है, पूछा क्या है ध्यान दो, रिक्वायर्ड क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन रेशो, पीरियड एंड इंटरप्रेट द रेशोज। फिर है आरओई आपको निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉइंट एनालिसिस, और कमेंट करना है कि आरओई को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और फिर है सबसे मेन, एस्टिमेट द पीएनएल फॉर 23-24, व्हाट विल बी द ओनर्स कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है, अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च पे ओनर का कैपिटल कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका 15 मार्क का प्रॉपर क्वेश्चन है। डेटा बहुत ज्यादा है, मुझे पता है, टाइम बहुत लगेगा पढ़ने में, पर पढ़ने के बाद बहुत जल्दी आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि क्वालिटेटिव जो डेटा है वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये कोई एसएम की केस स्टडी नहीं है कि आपको वो सब करना है, आपको कैलकुलेशंस करनी है। आपके लिए जो काम का डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा ही ज्यादा काम का है, तो जो थ्योरी और बैकग्राउंड और इतिहास दिया है वो ज्यादा आपके काम का है नहीं, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बोलो, बेसिकली आपको 2 रेशोज निकालने हैं। बोलो, पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या होता है फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो याद आ रहा है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। बोलो, सीओजीएस डायरेक्टली दिया नहीं है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सीओजीएस का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भूलना नहीं, दिए रहते हैं कभी कभी, दिए हैं तो लेना होता है, नहीं दिए तो नहीं लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका आ गया सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो वो भी फॉर्मूला लिख दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बोलो, एक एक वैल्यूज पुट करते हैं। बोलो, डेटा क्या क्या है, 1 लाख ओपनिंग है, 2 लाख क्लोजिंग है, परचेज है 9.5 लाख, वेजेस, ठीक है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कैरेज इनवर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सब लिख लो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो। इनवर्ट्स जो होता है वो खरीदने का जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा होता है वो है, खरीदना प्लस खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है सब डायरेक्ट होता है। और यही मैं कैरेज इनवर्ट की जगह कैरेज आउटवर्ड लिख दूं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट वाले जो भी आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट आइटम्स होते हैं वो पीएनएल में आते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल ऐसा आपको पूरा बनाना होता है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ट मतलब ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी सीओजीएस के कैलकुलेशन में आएगा, क्लियर है। बाकी एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं,
ठीक है, ये इनडायरेक्ट होते हैं, डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट होता है, फाइनेंशियल चार्जेस भी इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब ये पीएनएल इनडायरेक्ट में आएंगे, जीपी के बाद में आएंगे, ठीक है, मतलब कौन से आइटम जीपी के ऊपर आएंगे, कौन से आइटम जीपी के नीचे आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मेन आपका क्रूशियल पॉइंट है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जीपी मार्जिन गलत निकलेंगी, फिर जीपी मार्जिन फोरकास्टिंग में भी गलत निकलेगी, फिर कुछ ज्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। चलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 प्लस परचेज 9.5 लाख प्लस वेजेस 7,00,000 प्लस कैरेज इनवर्ट्स 1,50,000, ठीक है, ये हो गए सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस 2,00,000 क्लोजिंग स्टॉक, 1,00,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2,00,000 क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बोलो न्यूमरेटर कितना आएगा, 1,00,000 प्लस 9,50,000 प्लस 7,00,000 प्लस 1,50,000 माइनस 2,00,000, तो न्यूमरेटर आ रहा है मेरा 17 lakhs डिवाइडेड बाय, ये तो ओरली आ जाएगा, 1 + 2 3, 3,00,000 डिवाइड बाय 2 1,50,000। बोलो 17 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आएगा 11.33 टाइम्स। टर्नओवर रेशो है, नंबर ऑफ टाइम्स में होता है, ठीक है। अब इसको इंटरप्रीट करो, अब 11.33 टाइम्स रेशो में आपको पता ही है, रेशो के ड्रॉबैक्स में भी आपने पढ़ा था कि रेशो को स्टैंड अलोन बेसिस पे आप इंटरप्रीट नहीं कर सकते, उसको आपको कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके आपको समझ में आता है कि कम है, ज्यादा है, बेटर है कि वर्स है, ठीक है। तो इसमें आपको जेनरिक आंसर्स ही लिखने होते हैं कि कंपनी शुड कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिटर्स इन द सेम फील्ड एंड इफ द रेशो इज हायर देन द कॉम्पिटिटर्स देन इट इज गुड, देन इट इज गुड। इंटरप्रीट करना है, मतलब अच्छा है कि खराब है, यही आपको बताना है, तो आपको कंपैरेटिव लैंग्वेज में घुमा के मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक आंसर लिखना चाहिए कि इफ द रेशो इज हायर, टर्नओवर रेशो जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा होता है, टर्नओवर रेशो जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा रहता है, उतना मतलब आपका अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऐसा माना जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से कंपैरेटिव सेंस में लिखना चाहिए कि इफ दिस रेशो इज हायर देन द कॉम्पिटिटर्स देन कंपनी इज हैविंग अ गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बट इफ द टर्नओवर रेशो इज लेस then it should improve the inventory management and increase the turnover, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड है एवरेज कलेक्शन पीरियड। बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। अब इंस्टीट्यूट ने रिसीवेबल टर्नओवर से निकाला है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलो कैसे निकलता है, इसमें उल्टा फॉर्मूला रहता है, टर्नओवर का उल्टा फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। रिसीवेबल्स किससे होते हैं, क्रेडिट सेल्स से होते हैं, डिवाइडेड बाय 360। नॉर्मली 360 का अजम्पशन होता है, एक बार देख लो कहीं कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो आप 365 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में 365 ही होता है हमेशा, बट काफी बार क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि 360 लो, अब यहां कुछ लिखा नहीं है तो आप 365 ले सकते हैं, या डिवाइडेड बाय 12 भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स में निकालना चाहो तो डिवाइड बाय 12, डेज में निकालना चाहो तो 365, आपके ऊपर है। मैं चलो मंथ्स में निकालता हूं, ठीक है, मतलब कुछ सही गलत नहीं होता इसमें, अजम्पशन लिख के आप कर सकते हो, डिवाइड बाय 12 ले लो। बोलो एवरेज रिसीवेबल निकालो, रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही हुआ है, 250 प्लस 3, 250 ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल आप निकालो, वहां दिया हुआ है कि जो आपका रेवेन्यू है, टोटल सेल है 25 लाख रुपए, उसका 80% क्रेडिट सेल है, ठीक है, तो 25 लाख का 80% ये आ गया आपका क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा मंथली क्रेडिट सेल आपका आ जाएगा, तो आंसर नंबर ऑफ मंथ्स में आएगा, ठीक है। बोलो ऊपर क्या आएगा, एवरेज 2,75,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs इंटू 80%, तो वो आता है 20 lakhs
डिवाइडेड बाय 12, तो वो आएगा 1,66,667 राउंड ऑफ, ठीक है। तो 2,75,000 डिवाइडेड बाय 1,66,667, तो ये आएगा 1.65 मंथ्स, ठीक है, 1.65 मंथ्स। इसको आप डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है क्या? डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो लगभग 50.19 डेज आ सकता है। मतलब आप इसको इंटू 30 कर सकते हो। मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है अगर, तो आप 1.65 इंटू 30 निकाल लो, तो लगभग उतना ही आएगा, 49.5, ठीक है। 50 डेज के अप्रॉक्स वो आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब वो अपन ने राउंड ऑफ किया ना, 1,66,000, ये पूरा आप 6666 आखिरी तक 0.66 लोगे तो एक्यूरेट आंसर भी इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड ऑफ की वजह से हल्का डिफरेंस चलता है। क्लियर है? अब ये भी आप बता नहीं सकते कि मेरा 1.65 मंथ्स अगर कलेक्शन को लगता है, अब ये अच्छा है कि नहीं, डिपेंड करता है कि मेरा क्रेडिट पीरियड कितना है, मैंने उधारी कितने समय की दी है, उससे कंपेयर करूंगा ना। अगर मैंने 2 महीने की उधारी दी है और मैं 1.65 मंथ्स में कलेक्ट कर रहा हूं, तो ये तो अच्छा हुआ। अब क्रेडिट पीरियड कुछ दिया हुआ नहीं है, पूरा आपने फैमिली का बैकग्राउंड पढ़ा लेकिन कहीं भी क्रेडिट पीरियड मेंशन नहीं था, होता तो वो काम का डेटा होता। तो इसमें भी आपको कंपैरिजन में लिखना पड़ेगा कि इफ द कलेक्शन पीरियड इज लेस देन द क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड बाय द कंपनी, then it is a good ratio, company is performing good, collection efforts are good. But if the credit period is less than 1.65 months, then company should improve the collection efforts, it should offer discounts, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये हुआ आपका 5 मार्क। इंटरप्रिटेशन देखो कम ज्यादा भी हो गया, इतना भी आप लिख के आ गए, 3 मार्क तो आपको मिलेंगे। 5 में से 3 तो आपको इतने पे मिलने ही है, एक आध मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आपने अच्छे से इंटरप्रिटेशन लिख दिया, तो 5 में से 4 तो मिलेंगे। क्लियर है? तो नॉर्मल था, कुछ खास ठीक है इसमें था नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर है, अब इंस्टीट्यूट ने जो दिया है वो आप कभी लिख नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो कुछ आउट ऑफ एकदम दिया रहता है जो आप कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब है आरओई निकालो, ठीक है। आरओई का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 3 अलग अलग रेशोज को मल्टीप्लाई किया जाता है। बोलो आरओई का फॉर्मूला क्या है? आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशो इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है, इक्विटी मल्टीप्लायर। ये 3 रेशोज को मल्टीप्लाई करना होता है। एक भी रेशो दिया नहीं है, सब आपको फ्रॉम द स्क्रैच निकालना है, इसलिए 5 मार्क का है। बोलो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है, इनटू 100। अब अलग अलग निकालना पड़ेगा एक एक, बोलो एक एक निकालो। पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन। बोलो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू दिस। बोलो नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट क्या है? सब पिछले साल का निकालना है, सब पास्ट का निकालना है, रेशो पास्ट के बेसिस पे पूछे हैं, तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। टी फॉर्मेट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सेल्स 25 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, फिर आपका परचेस, खैर हमने उसमें निकाल ही लिया था बट ठीक है पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो परचेस 9,50,000, वेजेस 7 lakhs, कैरेज इनवर्ट्स 1,50,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया जीपी। बोलो जीपी कितना आएगा? 25 lakhs प्लस 2 lakhs, क्रेडिट साइड का आ गया 27 लाख, माइनस 1 लाख, माइनस 9,50,000, माइनस 7 lakhs, माइनस 1,50,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8 lakhs, ये आ गया आपका जीपी, ठीक है। यहीं पे आप मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आगे काम आएगा। तो जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन सेल्स। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो 32% आपकी जीपी मार्जिन है, जो आप कांस्टेंट मान के प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो। तो 8 लाख आपका जीपी आ गया नीचे, यहां से आपका पीएनएल अकाउंट चालू हो गया।
बोलो अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो। एडमिन एक्सपेंस है 2,50,000। अभी आप प्लस माइनस करके भी इक्वेशन फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, अलग से पूरा अकाउंट फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है डेप्रीसिएशन 2 लाख और फाइनेंस चार्जेस है 50,000। ठीक है, तो ये आपका आएगा पीबीटी और फिर उसमें से टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आएगा। बोलो पीबीटी निकाल लो पहले। 8 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000, तो 3 लाख आपका पीबीटी आएगा। और नेट प्रॉफिट का नॉर्मली मतलब होता है पैट। ठीक है, तो पैट बेसिकली आपको लेना है, तो 3 लाख माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, या डायरेक्टली माइनस 30% भी आप कर सकते हो, या मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी जैसे हम एफएम में करते हैं। तो मैं 1 माइनस टी कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय सेल्स आएगा पूरा 25 लैक्स इंटू 100। बोलो 3 लाख माइनस 30% इनडायरेक्टली वो आएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 25 लैक्स इंटू 100, तो ये आएगा 8.4%। सेल का 8.4% आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, ये आ गया पहला एनपी। सेकंड है एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, बोलो टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल सेल्स दिया हुआ है 25 लैक्स, टोटल एसेट्स कहीं भी दिए हुए नहीं है। ठीक है, टोटल एसेट नहीं दिए हैं, पर टोटल, अच्छा टोटल एसेट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, 24 लैक्स। ठीक है, नहीं तो टोटल लाइबिलिटी यहां पे दिया हुआ है, टोटल डेट प्लस टोटल इक्विटी, ये भी आप देखोगे तो 24 लैक्स ही दिया है, इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप। तो 24 लाख आपका टोटल एसेट्स है। बोलो कितना आएगा, 25 डिवाइड बाय 24, तो ये आएगा 1.042 टाइम्स। ठीक है, टर्नओवर रेशो टाइम्स में आता है। फिर है लास्ट इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा, इक्विटी मल्टीप्लायर, फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर ज्यादा बेटर वर्ड है। तो इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। ठीक है, कि इक्विटी कितना है वो आपको पता चलता है। टोटल इक्विटी लिया है इन्होंने, या टोटल, हाँ टोटल एसेट्स लिया है। ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। ठीक है, टोटल एसेट्स अब भी हमने देखे 24 लैक्स अपॉन टोटल इक्विटी ऊपर था 20 लैक्स। ठीक है, इससे लेवरेज पता चलती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डेट है ही नहीं, जीरो डेट है, 20 लाख इक्विटी है, डेट है ही नहीं, तो टोटल एसेट्स 20 लाख आएंगे, टोटल लाइबिलिटी साइड 20 लाख आएगा, तो टोटल एसेट भी 20 लाख आएंगे। तो ये रेशियो आप निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब जब लेवरेज जीरो होता है तो ये मल्टीप्लायर 1 आता है। इनटू 1 करोगे किसी भी चीज से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जितना ये ज्यादा होगा 1 से, मतलब उतना ज्यादा आपका डेट है, इसीलिए इसको इक्विटी मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा डेट होगा उतने ये आपके अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करेगा। याद आ रहा है कुछ, एफएम में सब पढ़ा है ना, कि डेट जितना ज्यादा लो उतना अच्छा होता है। अगर आपका अर्निंग डेट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो आप लेवरेज का फेवरेबल इफेक्ट ले सकते हो। ये यही वो है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आता है 1.2 टाइम्स। ठीक है, तो इस जो ऊपर का 0.2 है वो डेट का इफेक्ट है। ठीक है, और आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, जो डिनोमिनेटर है 20 लाख रुपीस, उसका 0.2 लो, 20 लैक्स इंटू 0.2, 1 के ऊपर जितना इफेक्ट है तो 4 लाख ही आएगा, और आपका डेट 4 लाख ही है। तो डेट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ये मल्टीप्लायर बढ़ते जाएगा, और जितना ये ज्यादा मल्टीप्लायर होगा उतना आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। तो हायर द मल्टीप्लायर बेटर द रेशो। ठीक है, तो निकालो आरओई। बोलो नेट प्रॉफिट रेशो 8.4% इनटू टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो 1.042 इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर 1.2, तो ये आपका आ जाएगा आरओई। अब ये जो परसेंटेज है इसको साइड रखो, मतलब आपका आरओई भी परसेंटेज में ही है, तो इसको 8.4 ही लो। तो 8.4 इंटू 1.042 इंटू 1.2, 10.50, और वो परसेंटेज एज इट इज ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब आरओई परसेंटेज में ही आता है।
तो 10.5 आपका आरओई आएगा। और अब पूछा है कि इसको इंप्रूव कैसे करते हैं। अब आरओई इंप्रूव कैसे होगा भाई, इन तीनों को अगर आप इंडिविजुअली इंप्रूव करोगे तो आरओई इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट इंप्रूव करो। नेट प्रॉफिट कैसे इंप्रूव होता है, या तो आप सेल बढ़ाओ या तो आप खर्चे कम करो। आंसर तो ऐसे लिखने पड़ेंगे ना, कंपनी शुड ट्राई टू इंक्रीज द सेल्स और कंपनी शुड ट्राई टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा तो आपका आरओई इंप्रूव होगा। फिर है कि आपको एसेट टर्नओवर बढ़ाना चाहिए। एसेट का जो यूटिलाइजेशन है, एसेट के यूटिलाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, एसेट की एफिशिएंसी है, वो आप इंक्रीज करो। तो आप कम एसेट में ज्यादा टर्नओवर अगर कर पा रहे हो तो आपका एसेट टर्नओवर रेशियो इंप्रूव होगा, तो आपका आरओई इंप्रूव होगा। फिर आप डेट ज्यादा लो, डेट ज्यादा लोगे तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो आरओई आपका बढ़ेगा। तो इन तीनों इंडिविजुअल रेशियोज को अगर आप इंप्रूव करते हो तो आपका आरओई अल्टीमेटली बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? देख लो भाई, सब अच्छे से देख लो, लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है थर्ड, एस्टिमेट द पीएनएल एंड ओनर्स कैपिटल। बोलो, पीएनएल एस्टिमेट करो। पीएनएल अब टी फॉर्मेट में ही बनाओ तो बेटर रहेगा, या आप जैसे कंपनीज का बनाते हैं वैसा भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं टी फॉर्मेट में प्रेफर करता हूं, ठीक है। बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एस्टिमेटेड, ठीक है। बोलो, सेल्स दिया हुआ था 30% से बढ़ेगी, तो यहां निकालो 25 लाख प्लस 30%, तो ये आ जाएगा 32,50,000, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली जीपी ले लो। बोलो, जीपी कितना आएगा, 32% आया था, याद है, 32,50,000 इंटू 32%, तो ये आएगा 10,40,000। जो जो दिया हुआ है पहले आप लिख लो तो आपको ख्याल में आएगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, देखो एडमिन डायरेक्टली दिया हुआ है कितना है, ठीक है। एडमिन दिया हुआ है डायरेक्टली 2,75,000। फिर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 3 लाख रुपीस। फिर फाइनेंस चार्जेस दिया है 50,000 प्लस नया जो आपने डेट लिया। देखो 5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका 80% यानी कि 4 लाख रुपीस आपने डेट लिया, और बचा हुआ 1 लाख आपने इक्विटी लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब डेट पे एडिशनल इंटरेस्ट कितना होगा निकालो, 4 लाख पे 10% साल भर का, तो 50,000 आपका एग्जिस्टिंग है प्लस 4 लाख का 10% यानी 40,000, तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा फोकास्टेड 90,000, ठीक है। ये जो है ये मैंने 40 निकाला। क्लियर है? तो इतना सारा डेटा आपको दिया है। अब सीओजीएस डायरेक्टली आप अज्यूम कर सकते हो, देख लेते हैं क्या लिया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। डायरेक्टली देखो जीपी लिया है, मतलब जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसको आप डायरेक्टली सीओजीएस बुला सकते हो, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, यहां पे जो है ना, ये डायरेक्टली आप बैलेंसिंग फिगर सीओजीएस ले सकते हो। तो 32,50,000 माइनस 10,40,000, तो ये आएगा 22,10,000, ठीक है। इसको डायरेक्टली सीओजीएस नाम दे सकते हो आप। बोलो, पीबीटी कितना आएगा, नीचे आप टैक्स भी निकालो, प्रॉपर पैट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, 10,40,000 माइनस 2,75,000 माइनस 3 लाख माइनस 90,000। और कोई था क्या एक्सपेंस, देख लो भाई। जो हमने यहां निकाला था 3 ही थे, ठीक है। बोलो, पीबीटी आएगा 3,75,000। फिर आएगा टैक्स 30%, ठीक है, इसी का 30%, तो वो आएगा 1,12,500। तो पैट आएगा 2,62,000
500। तो ये आ गया आपका फोरकास्टेड पीएनएल। ठीक है, इसमें अगर आपको जीपी मार्जिन वाला जो कांस्टेंट वाला अजम्पशन है वही क्लिक नहीं हुआ तो आप नहीं बना पाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट ही पीएनएल का क्या रहता है, जीपी मार्जिन कांस्टेंट अज्यूम करना है, सेल जो दिया है इंक्रीज ले लेना है, डायरेक्ट जीपी लेना है, बैलेंसिंग फिगर सीओजीएस लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए सब डेटा दिया रहता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये आपका पूरा जीपी है। इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो या जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 262,500। ठीक है, सही आया अपना। और अब है ओनर्स कैपिटल। बोलो कैपिटल कैसे निकलता है? ये भी टी फॉर्मेट में निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बोलो, सबसे पहला आता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इसमें दिया हुआ था आई थिंक 20 lakhs, याद आ रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फोरकास्टेड चीज है ना, जो भी 2023 और 2024 है, जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? प्रोप्राइटरशिप टाइप है ना ये, तो प्रॉफिट जाता है कैपिटल में। तो यहां वो प्रॉफिट लेना भूलना नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहां पे लेना है, नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, जो आपने ऊपर निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 262,500। और थर्ड आता है नया कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस किया, या हो सकता है ड्राइंग्स वगैरह दिया रहे, तो ड्राइंग्स फिर माइनस करना है। ठीक है, डेटा जैसा रहता है वैसा आपको निकालना होगा। ड्राइंग्स कुछ नहीं दिया है तो माइनस कुछ नहीं होगा। नया कैपिटल लाया गया है, 5 lakhs में से 4 lakhs डेट लिया गया है, बचा हुआ 1 लाख इक्विटी था, तो वो यहां पे ऐड होगा। एडिशनल इक्विटी 1 लाख रुपीस। तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा 23,62,500। ठीक है, ये आपका होगा क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024। क्लियर है क्या? तो ये आपका आंसर है। तो बेसिक्स, थोड़ा बेसिक अगर आपको मतलब ठीक है ना, तगड़े करने पड़ेंगे। किसी को भी मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, डिवाइड करना, ठीक है, बेसिक्स में आपको बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है ताकि आप नंबर्स फटाफट निकाल पाओ। ठीक है, चलो, तो ये था आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? अब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, वो है क्वेश्चन नंबर 2। 1 मैं कहूंगा इतना टफ नहीं था, 1 टफ नहीं था क्योंकि उसमें एटलीस्ट आरओई आपके ऑलरेडी सिलेबस में था, वो फॉर्मूला आपके सिलेबस में था, रेशोज आपके सिलेबस में थे, फोरकास्टिंग भी देखो दिसंबर में ऑलरेडी था, मैं यूट्यूब पे पढ़ा भी चुका हूं, किसी ने वो देखा होगा तो वो ये कर लेता, क्योंकि दिसंबर में तो फोरकास्टेड बैलेंस शीट तक पूछी गई है, वो भी मैंने उसमें पढ़ाई हुई है कि कैसे बनती है, बैलेंसिंग फिगर कैसे लेना होता है, सब मैंने बताया हुआ है। और ये सब इतना ही होता है, लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करें, अरे चीज़ें इतनी हैं, जीपी कांस्टेंट लेना है, सेल बढ़ाना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेटा दिया रहता है, इतना ही है। इंटरेस्ट जैसे ऐड होगा, डेट लिया है तो इंटरेस्ट ऐड होगा, एसेट्स बढ़े हैं तो डेप्रीसिएशन बढ़ेगा, ये सब दिया रहता है, या इसके हिंट्स दिए रहते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर आप एडजस्टमेंट्स अच्छे से पढ़ोगे आपको सब ख्याल में आ जाएगा कि हर चीज का कैसे इफेक्ट लेना है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इजी बहुत है लेकिन अलग है, बहुत ही अलग है, इसमें भी काफी चीजें बहुत ही फंडामेंटल है जो पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। बैलेंस शीट दिया है एक्स लिमिटेड का 31 मार्च 2023, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस शीट है, जहां जहां ये एक्स दिए हैं यही आपको हिडन फिगर्स निकालने हैं। तो इक्विटी कैपिटल है, देखो शेयर कैपिटल इक्विटी थोड़ा बरोबर नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। ओके, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ ये हेडिंग है, एक्चुअली सेकेंड हेडिंग है, वो है डिवाइडेड इन द फेस वैल्यू ऑफ 1000, मतलब ये इक्विटी है और ये प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, और ये आउटर कॉलम में टोटल कैपिटल दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो हमको पूरा डेट इक्विटी प्रेफरेंस और इक्विटी निकालना है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, जनरल रिजर्व ये सब दिया हुआ है,
फिर है नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, वो भी नहीं दिया है, वो आपको निकालना है। करंट लाइबिलिटी सारे के सारे दिए हैं। एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में आपके सारे जो फिक्स एसेट्स हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ आई थिंक कुछ एरर हुआ है, बस यही एक थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ नॉन करंट एसेट्स या तो अदर नॉन करंट एसेट होने चाहिए या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ तो यहाँ प्रॉपर दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नॉन करंट एसेट लिखा है, यहाँ भी नॉन करंट एसेट लिखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रॉपर कुछ तो इंस्टीट्यूट की तरफ से हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का ये इंडिकेशन है जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नीचे दिया हुआ इसका हिंट है कि ये इन्वेस्टमेंट का नंबर है जो आपको निकालना है। और फिर इन्वेंट्रीज आपको निकालना है, इन्वेंट्री का निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3-4 हिडन नंबर्स आपको निकालने हैं। अब आपको डेटा दिया है, ध्यान दो। कंप्लीट द अबव बैलेंस शीट, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये हिंट है, यहां दिया ही है। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में कहीं दिख रहे हैं, थोड़ा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। अकाउंट्स में, एफएम में अटेंटिवनेस बहुत लगेगा कि पूरे मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट का नामो निशान नहीं, और इन्वेस्टमेंट्स अदर्स में ही आते हैं, फिक्स्ड एसेट में तो इन्वेस्टमेंट्स आते भी नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म में आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स में, और लॉन्ग टर्म वाले नॉन करंट में आते हैं। तो ये अगर आपको नॉलेज है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट की नॉलेज है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि निकालने हैं, ठीक है। अब उसका डेटा कैसा दिया है? इन्वेस्टमेंट्स आर इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज and have an interest rate of 8% and the payout of interest is 100 lakh rupees, ignore TDS। मतलब ये रिवर्स कैलकुलेशन है। बेसिक, मैं आपको बेसिक समझाता हूं। कभी भी आप ऐसी दुविधा में फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट निकलता कैसे। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है ना, पे आउट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हो आप वो बताओ। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, अगर डिबेंचर वगैरह है, उस पर हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट? तो उसमें हम क्या लेते हैं, डिबेंचर का अमाउंट या लोन का अमाउंट, जो भी डेट है, ठीक है, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही फॉर्मूला यूज करना है। मैं कोई भी आपको आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं बता रहा, या कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे को ही पता है। बेसिक फॉर्मूले को ही बस घुमाना है, सिर्फ घुमाना है, मैथ्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को आप ये अमाउंट निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो। यहां पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इसी फॉर्मूले को घुमाओगे तो वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है जिस पे ये ब्याज मिल रहा है वो निकल सकता है यहीं पे, ठीक है। तो इसी को मैं घुमा रहा हूं, डिबेंचर यानी वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसको इधर भेजो तो इंटरेस्ट इन रुपीज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रिवर्स फॉर्मूला है जिससे आप यहां पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल सकते हो। मतलब सारा डेटा दिया हुआ है प्रॉपर। तो मुझे बताओ 100 लाख का आपका इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 100 डिवाइडेड बाय 8%, तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा? तो ये आएगा 1250 लैक्स, ठीक है। 1250 लैक्स आपने इन्वेस्ट किया है, उस पे 8% यानी कि 100 लाख रुपीस आपको मिले हैं। तो ये आपका मिल गया 1250, ये मिल गया 1250, ठीक है। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट पे आ जाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, आपको पता ही होना चाहिए इन्वेंट्री रेशियो टाइम्स में होता है, तो 5 मतलब 5 टाइम्स। COGS इज 15,000 लैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आर सेम, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है आपको, बोलो। जैसे ही मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला, आपको फॉर्मूला ख्याल में आना चाहिए, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग सेम है ऐसा न दिया रहता तो प्रॉब्लम होती, तो उनको ओपनिंग क्लोजिंग का रिलेशन क्या है वो, या एक आध ओपनिंग का अमाउंट आपको देना पड़ता तो आप निकाल पाते। डायरेक्ट लिखा है दोनों सेम है। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होते हैं, इससे क्या होता है? सोचो थोड़ा, वही आपको कह रहा हूं, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अगर मेरा ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक भी 1 लाख है, एवरेज निकालो। 1 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 2 1 लाख। तो जब भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होता है, एवरेज भी सेम ही आता है, ठीक है।
मतलब जब मैं COGS इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे एवरेज इन्वेंट्री पता चल जाएगी और वो एवरेज इन्वेंट्री ही ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही रहेगी। मतलब समझा क्या कुछ? मतलब क्या हुआ कि इससे ही डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक आपको पता चल जाएगा और जो आपको बैलेंस शीट में चाहिए वो क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री जो निकलेगी वो सेम है, ओपनिंग भी सेम रहेगा, क्लोजिंग भी सेम रहेगा, एवरेज भी सेम रहेगा, तीनों नंबर्स सेम आते हैं अगर आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो। ठीक है, तो बस ये भी रिवर्स वर्किंग है। ठीक है, थोड़ा बस फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बोलो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, बोलो 5 टाइम्स इज इक्वल टू 15,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को उधर लेके जाओ, 5 को नीचे लेके आओ, 15,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 3,000 लैक्स। ठीक है, दैट इज यही मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां लिख सकते हो आप, एज ओपनिंग क्लोजिंग आर सेम, एवरेज विल ऑल्सो बी सेम, सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली आएगा 3,000, तो मेरा टोटल भी आ जाएगा 3,000 प्लस 5,000 8,000, 8,000 प्लस 300 8,300। तो अगर आप अभी ध्यान दो, आपको एसेट की टोटल मिल जाएगी, एसेट की टोटल मिल जाएगी, सारे एसेट पता चल गए, निकालो। फिक्स्ड एसेट है 33,500, 1250 आपका इन्वेस्टमेंट आया और 8,300 आपका करंट एसेट आया, तो आपका टोटल एसेट जो है वो है 43,050, 43,050, एंड टोटल लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज, तो 43,050 आपके लाइबिलिटी का भी टोटल होगा। अब आपको ये दो नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। बोलो इशूड इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 ईच इज ट्वाइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका डबल इक्विटी है, मतलब इनका आपस में रेशो दिया है 2:1, इक्विटी डबल है, मतलब वो ट्वाइस है, वो 2 है और प्रेफरेंस शेयर 1 है, 2:1। ठीक है, इसको रेशो में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी टू प्रेफरेंस इज इक्वल टू 2:1। अभी इससे इतना ही डेटा समझ में आता है, अमाउंट नहीं दिया है, सिर्फ आपस का रेशो दिया है। और फिर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैव एन इंटरेस्ट पे आउट ऑफ 1,000 लैक्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सेम जैसे हमने इन्वेस्टमेंट निकाला, यहां पे आपको बोरोइंग का अमाउंट निकालना है। बोलो सेम है, बोलो इंटरेस्ट इज इक्वल टू बोरोइंग into rate of interest. Borrowing is equal to interest in amount upon rate of interest. तो इंटरेस्ट है आपका 1,000 लैक्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 लैक्स, तो आपका बोरोइंग आएगा 10,000 लैक्स, 10,000 लैक्स। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, तो मेरा बोरोइंग आ गया 10,000 लैक्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे ये टोटल मिल जाएगा। एक एक स्टेप आपको ही पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, हिडन फिगर्स में ये थोड़ा आपको करना होता है कि जैसे मुझे नंबर मिल गया, अब मुझे इक्विटी प्रेफरेंस चाहिए। इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग तो दिया ही नहीं है कि उनके इंडिविजुअल अमाउंट्स क्या हैं, कोई हिंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, पर उनका आपस का रेशो दिया है। तो अगर मुझे टोटल मिल जाए, उन दोनों को मिला के कितना अमाउंट है, ये जो आउटसाइड है, ये टोटल मिल जाए, तो मैं उसको 2:1 में डिवाइड कर दूंगा। तो ये आप अभी हिडन फिगर निकालो, कैसे निकालेंगे? टोटल लाइबिलिटीज को में से माइनस करते चलो। बोलो 43,050 टोटल लाइबिलिटी है, माइनस करंट लाइबिलिटी 8,600, माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10,000 जो हमने निकाला, माइनस पूरे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है आउटर कॉलम में 22,800, तो बचता है 1650। तो टोटल शेयर कैपिटल 1650 है और इसको 2:1। अब 2:1 का क्या मतलब होता है? ये रेशो हो गया। इसी को मैं प्रपोर्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2/3 1/3, 2 + 1 3, तो बेस कितना आता है? 3। ठीक है, बस यही करो, 1650 इंटू 2/3, तो ये आ गया आपका इक्विटी 1100 लैक्स,
और प्रेफरेंस शेयर्स आएगा इनटू 1/3, तो वो आएगा 550। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका आ गया 1100, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 550, तो टोटल शेयर कैपिटल आ गया 1650, टोटल बोरोइंग्स आ गया 10,000, टोटल लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट आ गया 43,050, आपके इन्वेस्टमेंट्स आ गए 1250, आपका स्टॉक आ गया 3000 और आपका टोटल करंट एसेट आ गया 8300 और आपका एसेट साइड का टोटल आ गया 43,050। क्लियर है क्या? तो सिंपल है। अगर आप कंसेप्चुअली देखें, कंसेप्चुअली मुझे ये काफी इजी लगा, मतलब एटलीस्ट 2-3 वर्किंग्स तो भी हर बच्चा कर सकता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर से आप इन्वेंट्री निकाल सकते थे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल सकते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? तो ये सारे आपके वर्किंग नोट्स है। ठीक है, ये आपका पहला वर्किंग, दूसरा वर्किंग, तीसरा वर्किंग। ठीक है, बाकी भी आप वर्किंग बना सकते हो। जो मैंने बैलेंसिंग माइनस कर करके निकाला वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे शेयर कैपिटल का अमाउंट है तो भाई टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब लिखना पड़ेगा। मैंने ओरली बता दिया पर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 43,050 माइनस कितना अमाउंट था 8,600 माइनस 10,000 माइनस 22,800, तो ये आएगा 1650। फिर जो मैंने वर्किंग्स बताए उसको 2:1 में बांटने का वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल इंटू 2/3, यानी कि 1650 इंटू 2/3 तो आएगा 1100। फिर प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल इंटू 1/3। ठीक है, ऐसे सब फॉर्मूले या जो भी है वर्किंग्स आपको लिखनी पड़ेंगी। 7 मार्क का क्वेश्चन है तो इसलिए वर्किंग नोट्स आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? और फिर आपको बैलेंस शीट पूरी भर के भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है 7 मार्क के हिसाब से, ऐसा पूरा भर के भी पूरा प्रेजेंट करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां इंस्टीट्यूट ने यहां बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, यहां से देखो दिख रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1250, तो ये थोड़ा टाइपो एरर टाइप हो गया है इंस्टीट्यूट से। ठीक है, यहां पे भी देखो हेडिंग्स प्रॉपरली दी हैं, इक्विटी प्रेफरेंस एक के नीचे एक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। फ्लो आई होप आप सीख गए होंगे, एडजस्टमेंट्स कैसे फॉर्मूला लिख के घुमा के, हमेशा घुमा के वाले ही आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट कभी दिया नहीं रहता है। ठीक है, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट रिवर्स वर्किंग से ही नॉर्मलीज इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको 2 क्वेश्चन अब समझ में आ गए। इस टाइप के अगर सिमिलर आए तो आई होप आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं 2-3 और जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।